Okay. Yes. So I welcome you all to Pinnacle Guidance Tutorials. Fine. So today our session is on time and work, and we are going to, and as this is our sixth session, so I would advise you that you should be going through our previous sessions, our previous 5 sessions actually. There were 5 in which I have discussed many concepts on which and through questions. Okay, so in this session also we are going to discuss some of the concepts through questions as well. I'll be giving you time for each question, then I'll be discussing some methods to solve them. Fine. Each question either is based upon a previous concept or it has a new concept. Fine. So yes, let's start with our sixth session. So okay, here is your first question. You have 1 minute to solve this question out, and yes, today there are options as well. Fine. Okay. Okay, so yes, let us discuss. This question is also based upon the concepts that we were used to do in our last sessions, in last 5 sessions. So yes, here also. Okay, so the question is like Shush and Komal can do a piece of work together in 7 days. Okay, so the first thing that should strike in your mind, that we have to work on the work. Fine, total number of work we have to assume. And what should be the total number of work that we should assume? The total number of work that we should assume is should be a multiple of 7. Fine. So and yeah, and the another number I can see over here is 4. Fine. So I took the LCM of 7 and 4, and it is 28. Fine. So let us move on with the question. Okay, so total work that I assumed is 28 units. Fine. And it was given that Sush and Komal can do a piece of work in 7 days. So Sush, okay, so let Sush efficiency be S units and Komal efficiency be K units per day. Fine. So total work is 28 units. It's 28. And what is the total efficiency? Total efficiency is K plus S. K plus S. Fine. Because these 7 days, Komal and Shush both do the work. Fine. So its total efficiency is K plus 7. And total number of days or time you can say is 7. So we got K plus 7 is 4. This is our first equation. Fine. Okay, and the next sentence gives the efficiency relation between Shush and Komal. Shush is 7/4 times the efficient of Komal. अगर कोमल की एफिशिएंसी 1 होगी तो शुश की एफिशिएंसी 7/4 मल्टीप्लाई बाय 1 मतलब 7/4 होगी. ठीक है, मतलब मैंने एज्यूम किया है एक एग्जांपल देके, बट यहाँ पे ये होगी कि शुश की जो एफिशिएंसी है, ठीक है, वो 7/4 टाइम्स ऑफ के होगी. ठीक है, तो इस ये जो डिनोमिनेटर में 4 है उसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ LHS में. ठीक है, तो 4s इज इक्वल टू 7. एक ये इक्वेशन बनी थी k प्लस एस इज इक्वल टू 4, दूसरी इक्वेशन 4s इज इक्वल टू 7k बनी है. तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं,
एस की वैल्यू की जगह हम लोग ये रख सकते हैं 7/4 के, ठीक है। तो के प्लस एस की जगह क्या हो जाएगा, के प्लस 7/4 के, ठीक है, इज इक्वल टू 4, ये 4 आ गया। व्हेन यू कैलकुलेट इट, के की वैल्यू 16/11 आ जाएगी, ठीक है। वैसे ही एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। अब एस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एस इज इक्वल टू 7/4 के, ठीक है, फाइन, ओके। तो 7/4 मल्टीप्लाई बाई 16/11, ठीक है। तो वो ये 4 से 4 कटेगा और 7, इस 7 से 4 का मल्टीप्लिकेशन होगा, वो जो रिमेनिंग है, तो 7 4 जा 28, ठीक है। सो 28/11 यूनिट पर डे, ठीक है। सो एस विल बी 28/11 यूनिट पर डे। अब हम लोग को निकालना क्या है, द सेम जॉब कैन बी डन बाय सुश अलोन इन हाउ मेनी डेज। अब सुश कितने टाइम में ये सेम जॉब कर सकता है, ओके। सुश कैन डू, टोटल नंबर ऑफ वर्क कितना है हमारा 28, और कितने लोग काम कर रहे हैं, सिर्फ एक एस शुश काम कर रहा है, तो सिर्फ शुश की एफिशिएंसी ही काउंट होगी, ठीक है। तो हम लोग को ये पता है टोटल वर्क इज इक्वल टू, यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा, टोटल एफिशिएंसी इनटू टोटल टाइम। हम लोग को निकालना क्या है, टाइम, तो टाइम विल बी इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी, ठीक है। तो यहाँ पे एफिशिएंसी कितने लोग काम कर रहे हैं, सिर्फ ये काम कर रहा है शुश, तो शुश की एफिशिएंसी हम लोगों ने निकाली थी 28/11, ठीक है। तो अब टोटल वर्क हमारा कितना था, 28 एज्यूम किया था, तो 28 डिवाइडेड बाई 28/11, यूनिट से यूनिट कटा, 28 से 28 कैंसिल हुआ, तो दिस 11 गोज टू इन द न्यूमरेटर। सो कितने डेज हुए, 11। आंसर क्या हुआ, 3। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ड्यूरिंग दिस होल प्रोसेस, ठीक है, मैं अभी तक आपको क्या देता आया था, टाइप इन द आंसर वेयर आपको यू डिडंट नो एनीथिंग अबाउट द ऑप्शंस, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑप्शंस की कोई यूज़ पड़ा, अभी नहीं पड़ा, ठीक है। जब पड़ेगा उस तरीके के क्वेश्चंस में आपको दिखा दूंगा। मैं इस बार ऑप्शन सिर्फ इसलिए लेके आया हूँ सो डैट आपको ये ना लगे कि ऑप्शंस के साथ नहीं दिखा रहा। ऑप्शंस दे के भी स्टिल देखे आपको कोई वो नहीं पड़ा, आपने बाकायदा 11 डेज निकाला और उसी पे जाके आपने 11 टिक कर दिया, फाइन, ओके। मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव 1 minute टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आउट। Okay, so yes, okay, so now we are going to discuss this question. Kamla can do a work in 15 days. Bimal is 50% more efficient than Kamla. You can anything, fine. The number of days Bimla will take to do the same piece of work. इसमें भी कुछ नहीं है, आप क्या कर सकते हैं, इसका एक बिल्कुल स्केलेटन सा होता है अगर ऐसे डेज का। इसमें स्केलेटन से ये होता है कि आप वर्क एज्यूम करो, एफिशिएंसी निकालो, एफिशिएंसी सबकी निकल जाएगी, उसके बाद उसको डिवाइड कर दो टोटल वर्क से, आपका वो आ जाएगा, आपका क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ डेज आपको जितना चाहिए, ठीक है। अब क्या, कमला कैन डू अ वर्क इन 15 डेज, अब और तो कोई दिख नहीं रहा है, ठीक है, और आपको तो कोई मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा, बट यहाँ से 15 का क्या, 50% का क्या मतलब पता चलता है, 1/2, फाइन। सो मैंने टोटल वर्क एज्यूम कर लिया 30 यूनिट्स। के की, कमला की एफिशिएंसी कितनी आई, 30 डिवाइड बाई 15 डेज उसको लगा था, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2 यूनिट पर डे, ठीक है।
अब ये बिमला की एफिशिएंसी इज़ 50% मोर। अगर कमला की 1 है तो बिमला की 1.5 होगी एफिशिएंसी, ठीक है। तो बिमला की एफिशिएंसी 50% मोर देन कमला, यहाँ पे लिखा हुआ है 50% मोर। तो कमला की एक जितनी कमला एफिशिएंसी प्लस उसकी 50% और ऐड हो जाएगा। 50% क्या होता है 0.5 या फिर हाफ मान लीजिए, तो कमला एफिशिएंसी, ठीक है। तो कमला की 1.5 एफिशिएंसी हो जाएगी बिमला की एफिशिएंसी, और कमला की एफिशिएंसी हम लोग ने निकाली थी 2, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया 1.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 3। अब टाइम टेकन बाय बिमला, टोटल नंबर ऑफ वर्क कितना है 30 यूनिट्स, और बिमला की एफिशिएंसी कितनी है 3 यूनिट्स। यूनिट से यूनिट कैंसिल, 3 से ये 30 कैंसिल, 10 आ जाएगा, तो 10 डेज लग गया। फाइन। यहाँ पे भी देखिए आपका कोई भी वो नहीं आया ना, कोई भी आपका नहीं आया कि आप कैसे करेंगे, मतलब आपका क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपने तो ये चीज़ देख ली कि आप डायरेक्ट इसको भी कैसे कर सकते हो, डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ कैसे कर सकते हो, ठीक है। सो इट्स लाइक कमला का पीस ऑफ वर्क, कमला की एफिशिएंसी 50% मोर है, ठीक है। कमला की एफिशिएंसी 50% मोर है, यस, फाइन। सो कमला की एफिशिएंसी, बिमला की एफिशिएंसी विल बी 1.5 ऑफ कमला एफिशिएंसी, फाइन। सो हम लोग को ये पता है कि बिमला की नंबर ऑफ डेज, sorry, efficiency is inversely proportional to Kamla. The efficiency is inversely proportional to number of days taken. Fine. So अगर किसी की 1.5 efficiency है तो उसको नंबर ऑफ टाइम डेज कितना लगेगा 1.5 लेस लगेगा, ठीक है। तो 15 डेज डिवाइडेड बाय 1.5 कितना होता है 10। आंसर कितना है 10। फाइन, इतना भी नहीं करना पड़ा, ठीक है। तो ये किसका शॉर्टकट है, ठीक है। तो जितना यहाँ पे लिखा था 50% मोर, उतना ही उसको डिवाइड कर दीजिए, 15 डिवाइड बाई 1.5 कितना आ गया 10। फाइन, आगे चलें। ओके, सो यू गॉट 1 मिनट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आउट। Okay, fine. So what's like x is 3 times more efficient worker than y. Fine. Therefore able to complete a work in 60 days earlier. 60 days earlier. Oh sorry. How many days will they take together to complete the work? Fine. So कैसे करेंगे इसको? इसमें भी एग्जैक्टली वही चीज़ जो मैं कर रहा हूँ जो हम लोग पहले कर रहे थे। स्केलेटन अब भी वही है। स्केलेटन क्या होगा 60 दिया गया है, ठीक है। अब आपको 3 टाइम्स यहाँ पे 3 लिख रहा है तो आप उसका एलसीएम भी ले सकते हैं। 60 और 3 का एलसीएम कितना होता है 3 ही होता है। फाइन, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना हो गया 60 हो गया। अब 60 कितना 60 टोटल वर्क हो गया, ठीक है। अब हम लोग को ये पता है कि x इज़ 3 टाइम्स मोर एफिशिएंट देन y, तो x की एफिशिएंसी x मान ली जाए और y की एफिशिएंसी y मान ली जाए, तो हम लोग को ये पता है x इज़ इक्वल टू 3y, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ डेज x टेक्स अलोन विल बी इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय उसकी एफिशिएंसी x, नंबर ऑफ डेज y टेक अलोन 60 उसकी एफिशिएंसी y, और हम लोग को यहाँ से क्या पता चला था y इज़ इक्वल टू x/3, ठीक है।
तो ये 3 न्यूमरेटर में चला जाएगा तो 180 बाई एक्स हो जाएगा। हम लोग को ये पता है अगर जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, ठीक है, वो जल्दी काम ख़त्म कर लेता है एंड ही टेक्स लेस अमाउंट ऑफ वर्क और डेज, ठीक है, लेस अमाउंट ऑफ टाइम और डेज, ठीक है। तो फिर x ज़्यादा एफिशिएंट है तो वो कम डेज़ में कंप्लीट करेगा। कितने कम डेज़ में कंप्लीट करेगा? 60 डेज़ कम दिन में कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। तो ये 180/x कितना है? नंबर ऑफ डेज़ y टेक अलोन। ये 60x कितना है? नंबर ऑफ डेज़ x टेक अलोन। इन दोनों के डिफरेंस कितना आया है? 60 आया है। यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा, x कैलकुलेट हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 आ गया। और हम लोग को पता था यहाँ से x इज इक्वल टू 3/y, तो y इज इक्वल टू 2/3 आ जाएगा, ठीक है। अब वो बोल रहा है हाउ मेनी डेज विल दे टेक टुगेदर टू कंप्लीट द सेम अमाउंट ऑफ वर्क। सेम अमाउंट ऑफ वर्क, तो वर्क कितना है? 60 है, और टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? x प्लस वाई, ठीक है। तो 2 + 2/3, ठीक है। तो 60 डिवाइडेड बाई 8/3 विच इज़ इक्वल टू 45/2 फर्स्ट। यहाँ पे यू हैव टू डू थ्रू प्रोसीजर। यहाँ पे भी मैं इसका कोई शॉर्टकट है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो यू गॉट 1 minute टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आउट। Fine. Okay. So the question is like the works W1 and W2 are done by 2 persons, A and B. Fine. And A takes 80% more time to do the work W1 alone, and then he takes to do it together with B than he takes। मतलब A अगर अकेले काम करता है, ठीक है, और अगर वो बी के साथ काम कर रहा है, अगर बी के साथ काम कर रहा है W1 कंप्लीट करने में, फॉर एग्जांपल उसे 1 दिन लगा, बट अगर ए अकेले काम कर रहा है तो फॉर एग्जांपल उसे 10 दिन लगा अगर ए और बी एक साथ काम करते हैं W1 कंप्लीट करने में, ठीक है। तो अगर ए वही W1 अकेले काम करेगा तो उसे 18 दिन लगेंगे काम करने के लिए, ठीक है। अभी भी हम लोग अगर बेसिक से अपने स्टिक रहे ना, हम लोग फिर वही कर लेंगे। तो हम लोग कर क्या सकते हैं, पहले तो ये एज्यूम करें। अब मैंने आपको क्या बोला था, अब मैं यहाँ पे न्यू कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ। हम लोग पहले क्या करते थे, इन टोटल सारे एज्यूम कर लेते थे वर्क, और उसके बाद हर एक की एफिशिएंसी निकालते रहते थे, ठीक है। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग पर डे के हिसाब से वर्क डन देखेंगे। वो भी एक एफिशिएंसी हुआ, ठीक है, एफिशिएंसी तो वो भी हुआ, वर्क डन पर डे, ठीक है, वो भी एक एफिशिएंसी हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। तो लेटस हम लोग सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि ये ए और बी का वर्क डन पर डे को क्या कर सकते हैं, ए और बी मान सकते हैं, ठीक है। तो एक हम लोग को ये पता है कि यहाँ से हम लोग को क्या पता है, अगर ए प्लस बी को एक साथ एन डेज लग रहे हैं, ठीक है, वर्क W1 कंप्लीट करने में, तो ए को कितने डेज लगेंगे? 1.8 डेज, ठीक है, W1 कंप्लीट करने में, ठीक है। बट वो दोनों वर्क तो सेम होगा, तो उन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए, लेट ए एंड बी बी दी अमाउंट्स ऑफ वर्क डन पर डे बाय ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, ठीक है। लेट, अब तो क्या हुआ, ए और बी की एफिशिएंसी या फिर वर्क डन पर डे हम लोग ए और बी कंसीडर कर लिया। उसके बाद ए एंड बी को वर्क W1 कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? n डेज लगते हैं, फाइन। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी को मतलब ए और बी को, ये देखिए वर्क डन, ए और बी को कंप्लीट करने में n डेज लगते हैं, ठीक है, W1।
और वहीं ए टेक्स 80% मोर, 80% मोर मतलब 1.8, ठीक है। W1 कंप्लीट करने में 1.8 n लग रहा है ए की एफिशिएंसी, सिर्फ ए अगर कर, बट दोनों में वर्क तो सेम हो रहा है, तो हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। तो a प्लस बी n इज इक्वल टू 1.8 NA, ठीक है। यहाँ से हम लोग का एक इक्वेशन आ जाएगी b और a में, तो हम लोग को क्या पता चला, a इज इक्वल टू 1.25 b। a कितना एफिशिएंट है, कितना ज़्यादा एफिशिएंट है, मतलब a अगर 1 है, ए अगर 1.25 है तो बी को कितना होना पड़ेगा, 1 हो जाएगा, मतलब ए 25% ज़्यादा एफिशिएंट है, ठीक है। अब वो बोला है हाउ मच परसेंट मोर टाइम विल इट टेक टू डू द W2 alone दैन ही टेक्स टू डू वर्क टुगेदर विद ए। मतलब उसको कितना टाइम लगेगा, अगर वो कितना परसेंट ज़्यादा टाइम लगेगा अगर वो ए के साथ सिर्फ काम करे, ए के साथ काम करे और अकेले काम करे, ठीक है। हाउ मच परसेंट मोर टाइम विल इट टेक टू डू द W1 alone दैन ही टेक्स टू डू इट टुगेदर विथ, ठीक है। आ रहा है समझ में, मतलब कि वो कितना, हाउ मच परसेंट मोर टाइम बी विल टेक, कितना परसेंट वो ज़्यादा टाइम लेगा कंपेयर टू अगर ए और बी साथ में काम करें और बी अकेला काम करें, ठीक है। तो 2.5 क्या है, 2.5 क्या है, अगर ए को 1 मान, ए को अगर मैंने 1.25 माना, बी 1 माना, तो ये कितना हो जाएगा 2.25 ए प्लस बी, ठीक है, माइनस आपका कितना आ गया 1 होल डिवाइडेड बाई 1 इंटू 100, तो 125% ज़्यादा टाइम लग रहा है W2 कंप्लीट करने में। अब W2 क्या है, कुछ भी हो सकता है ना, हम लोग को वो डिपेंड तो किसी पे करता नहीं है, ठीक है। अब हम कुछ भी हो सकता है वो W1 या W2, ठीक है, इसलिए ओके फाइन, ओके। सो आगे बढ़े, ओके। हम लोग ये भी कर सकते हैं ना, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखा था, ए और बी कंप्लीट m डेज, फिर यहाँ से आप तुम वही क्वेश्चन ही तो लगा सकते हो ना, ठीक है। तुम यहाँ पे क्या मान सकते हो, m की जगह तुम कोई भी x मान सकते हो, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, उन दोनों को इक्वेट कर दो, तो m माइनस एक्स डिवाइडेड बाई तुम्हें क्या निकालना है, x निकाल देना है बस, फाइन। तो उससे 125% आ जाएगा, ठीक है। आगे चलें, ओके। ए हाँ, एंड यस, इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस और प्रीवियस सेशंस या कोई भी प्रीवियस क्वेश्चन में, प्लीज़ यू कैन कमेंट इन दिस वीडियो, ठीक है। और उसके बाद मेरा मेल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो यू कैन मेल मी ऑल्सो योर डाउट्स। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेल भी कर सकते हो अपने डाउट्स, फाइन। आगे बढ़ें, ओके। So A and B can do a piece of work in 4 days, while C and D can do the same work in 12 days. In how many days A, B, C, D do it together? So आपके पास 1 मिनट है to solve this question, 1 minute. Okay, फाइन। सो लेट अस रिज्यूम, ठीक है। अब यहाँ ये इतना सिंपल क्वेश्चन है, इस सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन है और आपका सॉल्व हो जाना चाहिए। 1 मिनट तो मैंने दिया है सो दैट अभी आप न्यूबीज़ हैं, लर्नर्स हैं, स्टार्ट कर रहे हैं,
तो आपको ना लगे कि मैंने इतनी जल्दी करवा दिया, फाइन, इसलिए मैंने 1 मिनट दिया था। तो A and B can do a piece of work in 4 days, ठीक है, while C and D can do the same work in 12 days. In how many days A, B, C, D will do it together? ठीक है, ओके। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पेयरिंग कर सकते हैं। A और B एक साथ काम कर रहे हो, C और D एक साथ काम कर रहे हो, ठीक है, उनके एफिशिएंसी की पेयरिंग तो कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग पुराना वाला कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, वही वर्क डन पर डे के हिसाब से। एफिशिएंसी तो वो भी होता है यूनिट पर डे, वर्क डन पर डे, ठीक है। देखते हैं, तो ABCD विल डू टुगेदर टेक 1/4। अब 1/4 ये कितना है, ये 1/4। अगर 1 यूनिट ऑफ वर्क मानो, ठीक है, तो वो 4 दिन में कंप्लीट करते तो एफिशिएंसी कितनी हो गई, 1/4, ठीक है, ऐसे सोचो। और ये क्या है, 1/12 कितने दिन में काम करते तो 1/12 आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4/12 इज इक्वल टू 1/3। अब ये 1/3 क्या है, ये एक क्या है, ये 1 यूनिट ऑफ वर्क था, और ये कितने दिन में हो रही है चीज़, तो कितने डेज में, 3 days टू कंप्लीट अ वर्क। एक लाइन का क्वेश्चन था, 1/4 + 1/12। हाँ, अगर किसी को उससे भी कर सकता है, अगर कोई वर्क एज्यूम कर लो आप, उससे भी हो जाएगा, उससे कुछ भी नहीं है आपका। A + B, जैसे आपने 12 को एज्यूम कर लिया, ठीक है, लेट अस सपोज आपने 12 एज्यूम कर लिया अपना टोटल वर्क, ठीक है, तो A और B कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएगा, 3 यूनिट्स। C और D कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल एफिशिएंसी A + B + C + D कितनी हो जाएगी, 3 + 1 4, ठीक है। टोटल एफिशिएंसी 4 हो गई। और कितना हम लोगों ने यूनिट वर्क ऑफ यूनिट्स एज्यूम किया था, 12 एज्यूम किया था, ठीक है। सो 12 यूनिट्स डिवाइडेड बाई 3 + 1 यूनिट्स पर डे, मतलब 12 डिवाइडेड बाई 4 यूनिट्स पर डे कितना होता है, 3 days। आंसर कितना आ रहा है, 3 days। यहाँ पे हम लोग 1 मान के कर रहे हैं, वहाँ पे हम लोग ने 12 मान के। वो भी 1-2 मतलब 1-2 बता रहा हूँ, वो भी 10-15 सेकंड का क्वेश्चन है, ये भी 10-15 सेकंड का क्वेश्चन है, कुछ इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है, फाइन। सो ओके, एंडिंग मैं सेशन एंड कर रहा हूँ, फाइन। सो अब किसी को भी डाउट हो रिगार्डिंग मैंने जितने भी अभी क्वेश्चंस ऊपर कराए हैं, या फिर मैं बाद में मतलब, या फिर मैंने पिछले क्लास के हैं, ठीक है, सो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। एंड यस, मेरी डिस्क्रिप्शन में ही मेरा वीडियो लिंक है। एंड या नेक्स्ट जो मेरा सेशन होगा वो भी इसी के बेस में होगा। तो अगर आपने पिछले मेरे सेशंस नहीं अटेंड किए हैं, डू अटेंड दैट क्वेश्चन एंड सेशंस, फाइन। सो ओके गाइज, एंडिंग द लेक्चर, हैप्पी लर्निंग गाइज, bye guys, please do like, share and comment. Bye guys, happy learning. Please do like, share and comment, जितना हो सके उतना शेयर करो। ओके, बाय बाय गाइस।